শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের আদি লীলায় আছি। তৃতীয় পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 34-এর অনুবাদের মাঝখান থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য সমগ্র ভারতের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশে 4টি মঠ স্থাপন করে তার 4জন সন্ন্যাসী শিষ্যকে সেই 4টি মঠের দায়িত্বের ভার অর্পণ করে যান। তো এই 4টি মঠ কি কি অশোক প্রভু? শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য 4টে যে মঠ স্থাপন করেছিল কি কি? একজন কো মালুম হ্যাঁ? আর কেউ বলতে পারবে? হ্যাঁ, বলি মাধব স্বরূপ প্রভু। তো আনন্দবার, ভোগবার, কীটবার, ভূমিবার। नामे परिचित, करेक्ट, नीचे लास्ट देखे नीचे। ओके, तो एक्चुअली ये 4 जो धाम हैं ये शंकराचार्य ने प्रतिष्ठा किया था। बद्रीनाथ, जहाँ भगवान ध्यान करते हैं, जगन्नाथ जहाँ भगवान भोजन करते हैं, रामेश्वरम जहाँ भगवान स्नान करते हैं, द्वारिका जहाँ भगवान राजपाट संभालते हैं। ये सब शंकराचार्य के द्वारा स्थापित, ठीक है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित। বর্তমানে একবার फिर से बोलिए, जो द्वारका क्या बोलिए? আবার বলতে হবে কেন? শোনা গেল না? तो वो क्या बोला? स्नान करते हैं। क्या बोला? स्नान करते हैं, सिर्फ इतना ही बोला, क्या बोला? स्नान करते हैं। ভগবান একবার ভালো করে শুনে নিন না। ভগবান বদ্রীনাথে ধ্যান করেন, জগন্নাথে ভোজন করেন, রামেশ্বরমে স্নান করেন, দ্বারিকায় রাজপাট সামলান, এটাই তো। বর্তমানে এই 4টি মূল মঠের অধীনে ক্রমশ অসংখ্য শাখা মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই মঠগুলির মধ্যে কাজকর্ম পরিচালনার ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম থাকলেও তাদের আচরণের মধ্যে অনেক বৈষম্য এবং বিভেদ রয়েছে। 4টি মঠের 4টি সম্প্রদায় আনন্দভার, ভোগবার, কীটবার ও ভূমিবার নামে পরিচিত। এগুলো সব মায়াবাদ সম্প্রদায় ওদের, ঠিক আছে, আমাদের বৈষ্ণব সম্প্রদায় না। এগুলো 4টে মঠ উনি স্থাপন করেছেন, তো ওনার সম্প্রদায়ের লোকগুলোই তো চালাবেন না, ঠিক না? এটা কমন সেন্স, যে স্থাপন করবে তার সম্প্রদায়ের লোকই চালাবে। তো এনাকে তো হাসি কি করে পেল এটার জন্য? 4টি মঠের 4টি সম্প্রদায় আনন্দবার, ভোগবার, কীটবার ও ভূমিবার নামে পরিচিত, ঠিক আছে। কালক্রমে তাদের মতবাদের মধ্যে অনেক বৈষম্য দেখা দিয়েছে, মানে ডিফারেন্স ইন ওপিনিয়ন, ঠিক আছে। কেউ বলছে এরকম ভাবে করবো আমরা, না কেউ বলছে এরকম, ওদের মধ্যে ডিফারেন্স ইন ওপিনিয়ন। ये जो पीठ बोलता है प्रभु वही है ना? क्या क्या ज्योतिष पीठ और क्या 4 पीठ है? तो वही है ना? हमको मालूम नहीं। शंकराचार्य के 4 पद हैं भारत में। अच्छा, चारों के लिए 4 मठ नियुक्त किए गए हैं, चारों के 4 अध्यक्ष हैं ये लोग मठ, जिसमें ज्योतिष। अच्छा, तो लिखा ही है इधर, ठीक है, लेकिन होना वही चाहिए। हाँ, करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु ये जो 4 नाम लिखे हुए हैं, जैसे आनंद वाला कौन सा इन चारों में से? मालूम नहीं या भोग वाला? अच्छा, वो नहीं लिखा है कहीं। नहीं लिखा है, उन लोग का जाके कीतवरा का मतलब क्या हुआ? कीतवरा माने क्या है? ये एक संप्रदाय का नाम है। पर अच्छा, ओके, चारों में से ये 4 कौन सा किसको असाइन्ड है? दैट वी डोंट नो, नो नीड टू फाइंड आउट। ओके, वैष्णव संप्रदाय में क्या क्या 4 प्रामाणिक संप्रदाय वो मालूम है, उन लोग का क्या है हम लोग को कैसे मालूम? जाकर पूछना पड़ेगा। ओके, अगला पैरा। শঙ্কর সম্প্রদায়ের গুরু শিষ্য পরম্পরার ধারায় সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হলে প্রথমে একজন প্রকৃত সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে ব্রহ্মচারী শিক্ষা লাভ করতে হয়, ঠিক আছে। उन लोग का प्रोसेस सुनिए कैसे सन्यास लेता है। সন্ন্যাসী যে শ্রেণীর অন্তর্গত সেই অনুসারে ব্রহ্মচারীর নাম দান করা হয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কেশব ভারতীর কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিল। যখন তিনি কেশব ভারতীর কাছে প্রথম যান তখন তিনি একজন ব্রহ্মচারী হিসেবে গৃহীত হন এবং তার নাম হয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ব্রহ্মচারী।
তো সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু তার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামটি উপযুক্ত মনে করেন এবং তাই তিনি তার সেই নামটি পরিবর্তন করেননি। इसका मतलब पहला नाम मिल गया था, अभी चेंज नहीं किया। राजीव प्रभु, वो इसका मतलब तो यही हुआ ना, केशव भारती ने नाम कृष्ण चैतन्य रखा था उनको। वो तो मुझे लगा था पहला सेंटेंस पढ़ के आज, लेकिन सेकंड सेंटेंस में क्या लिखा देखिए, সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু তার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামটি উপযুক্ত মনে করেন এবং তাই তিনি তার সেই নামটি পরিবর্তন করেননি। तो ब्रह्मचारी जब बने, एक्चुअली में वो जो लिखा हुआ था इससे पहले दिन भारती, पुरी और रीजन का ब्रह्मचारी का नाम में चैतन्य रहेगा, तो वही नाम उनको दिया गया जब ब्रह्मचारी बने थे। उसके बाद उन्होंने जब संन्यास लिया तो उन्होंने अपना नाम नहीं चेंज किया। না প্রভুজি, না, ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে ওই নামটা পেয়েছিলেন, আর এখানে বলছে ব্রহ্মচারী হিসাবে ওনাকে গৃহীত হয়েছে, কিন্তু সেই আগের নামটাই উনি রেখেছেন, কেশব ভারতীর দেওয়া না। এটা কেশব ভারতীর কাছে হলে তো नाम পাল্টে যেত। राजीव प्रभु, आप जो बोला ये चैतन्य मिला ब्रह्मचारी में, चैतन्य कहाँ लिखा है? ये चैतन्य ये वाला मिला ब्रह्मचारी में? यहाँ पे जो लाइन लिखा हुआ है कि जब वो सर्वप्रथम केशव भारती के पास गए तो उन्हें ब्रह्मचारी के रूप में स्वीकार किया गया और उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी रखा गया। हाँ हाँ, ओके, लेट्स सी आगे फिर कुछ कहीं मिलता है। কেশব ভারতীর কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভারতী নামটি যে কেন গ্রহণ করেননি, उनसे लिया लेकिन भारती नाम टाइटल तो लगा नहीं ना, श्री कृष्ण चैतन्य भारती ऐसे तो हम लोग नहीं बुलाते हैं ना। তা তার অনুগামী আচার্যরা বিশ্লেষণ করেননি, কিন্তু শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর গোস্বামী মহারাজ, প্রভুপাদ বললে আপনার গুরুদেবকে, সেই সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে শঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীর নামের সঙ্গে ঈশ্বর অভিমান যুক্ত থাকায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তা বর্জন করেছেন এবং নিজেকে ভগবানের নিত্য সেবক রূপে প্রতিষ্ঠা করে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য नामटी ব্যবহার করেছেন। ओके, तो उन लोग शंकर संप्रदाय, उन लोग तो मानता है कि हम और भगवान एक हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, जैसे मायावाद लोग प्रचार करते हैं। এখানে লেখা আছে সন্ন্যাসী নামের সঙ্গে ঈশ্বর অভিমান যুক্ত থাকায়। ঈশ্বর অভিমান যুক্ত মানে हम भी ईश्वर है, अहम ब्रह्मास्मि। श्री चैतन्य महाप्रभु ता बर्जन करेছেন, इसलिए वो नाम ग्रहण नहीं किया भारती। हालांकि उनसे लिया लेकिन अपना नाम में उस टाइटल को नहीं दिया। কিছু বলবেন ইন্দ্রাণী মাতাজি? প্রভুজি, তাহলে উনি যতদিন ঈশ্বর ভারতীর কাছ থেকে, ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে যখন নিয়েছিলেন দীক্ষা, তখন তো ওনার নিজের নাম তো একটা কিছু হয়েছে, তাহলে সেই নামটা কি ছিল সেটা তো জানা যায় না। দেখতে হবে সেটা। ओके, ईश्वर अभिमान युक्त থাকায় श्री चैतन्य महाप्रभु ता बर्जन করেছেন। सबको समझ में आया कि वो भारतीय टाइटल ऐड नहीं किया महाप्रभु? जी प्रभु जी, वेरी गुड। এবং নিজেকে ভগবানের নিত্য সেবক রূপে প্রতিষ্ঠা করে শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য নামটি ব্যবহার করেছেন। ব্রহ্মচারী হচ্ছেন তার গুরু সেবক, ব্রহ্মচারী হচ্ছেন তার গুরুর সেবক, তাই তার গুরুর দাস্য তিনি ত্যাগ করেননি। গুরু শিষ্যের এই সম্পর্ক ভক্তির অনুকূল। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রামাণিক জীবনচরিত গ্রন্থসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে যে সন্ন্যাস গ্রহণকালে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু दंड, कमंडल प्रभृति सन्यासी चिन्ह समूह धारण करेছিল। तो हम लोग ये सब देख भी सकते हैं। आप अगर गंभीरा में जाएंगे तो वहाँ महाप्रभु का कमंडल रखा हुआ है, मिट्टी का शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अब देखिएगा गंभीरा का अंदर में जो रूम है, अभी कुछ दिन आगे हम देख के भी आया, महाप्रभु का कमंडल रखा हुआ है। और दंड जो है वो तो नित्यानंद प्रभु ने तोड़ के फेंक दिया भार्गव नदी में। उस स्थान में भी इस बार गए थे हम लोग, हरी बोल। इस बार का पूरी ट्रिप बहुत अच्छा हुआ हम लोग का, करेक्ट? ओके, हाँ बोलून बंकिम प्रभु। আচ্ছা, ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিল সেরকম কি কোথাও পাওয়া যাচ্ছে? আমার তো মধ্যে মহাপ্রভু গয়াতে গিয়ে অনেক জায়গায় আছে ঈশ্বরপুরী থেকে দীক্ষা নেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, দীক্ষা নিয়েছে উনি, আমি অনেক জায়গায় লেখা আছে, অনেক জায়গায়। চৈতন্য চরিতামৃতেই আসবে একটু পরে, 35 নম্বর শ্লোক। আচ্ছা, যুগবতারও জানি গর্গ মহাশয়, কেউ বলবেন? তার যুগতার জানি গর্গ মহাশয়।
কৃষ্ণেরও নাম করণে করিয়াছে নির্ণয়। কৃষ্ণেরও নাম করিনে করিয়াছে নির্ণয়। তাকে মানে মহাপ্রভুকে কলিযুগের অবতার জেনে গর্গমুনি শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ করার সময় তার আবির্ভাবের ভবিষ্যৎবাণী করেছিল। हाँ, अभी गर्ग मुनि जब गौशाला में भगवान कृष्णचंद्र का नाम करा रहा था तो ऐसे कुछ बोलेगा कि ये व्यक्ति कोई साधारण बालक नहीं है, ये बालक ये सत्य युग में श्वेत अवतार लेके आते हैं और कलयुग में ये गौरव वर्ण में आएंगे, ऐसे कुछ बोला। देखें अभी श्लोक श्रीमद् भागवत का। ऐसे करके गर्ग मुनि बोलता है, तो हिंट दे दिया महाप्रभु का अवतार के बारे में गर्ग मुनि वही बोल ना ये बात पहले नीलांबर चक्रवर्ती बोला था, ये फास्ट নীলাম্বর চক্রবর্তী বলা था ये लड़का है। শুনুন না, এখানে কি বলছে সেটা শুনুন। নীলাম্বর চক্রবর্তী কলিযুগে বলেছে দাদু মহাপ্রভু, এখানে গর্গমুনি দাপর যুগে বলেছে কৃষ্ণচন্দ্র জন্মের সময়। এই বালকটি, আচ্ছা ये श्लोक पढ़ लेते हैं। आसन वर्णाक्रय हर्ष, बोलिए। आसन ब्रह्मास्तरो हास्य गृह्णतोऽनुजुगं तनु गृहन्तो हन्न जुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। इदानीं कृष्णतांगत। तो ये गर्ग आचार्य बोल रहा है, ठीक है, नंद महाराज और यशोदा माँ को बोल रहा है जब इनका नामकरण हुआ कृष्णचंद्र का गौशाला में। क्या बोल रहा है गर्गाचार्य? এই বালকটি কৃষ্ণ অন্য তিনটি যুগে শুক্ল রক্ত ও পীত বর্ণ ধারণ করে। এখন দাপরে সে কৃষ্ণ বর্ণ প্রাপ্ত হয়েছে, ওই জন্য কালো হয়েছে একটু, ঠিক আছে। কিন্তু অন্য যুগে শুক্ল, শুক্ল মানে যখন সত্য যুগে ভগবান কেউ হংস অবতার গ্রহণ করেন তখন শুক্ল অবতার। রক্ত, রক্ত মানে ত্রেতা যুগে ভগবান রামচন্দ্র রক্ত অবতার, ঠিক বলছি? রক্ত অবতার তো রামচন্দ্রই না, একটু পিঙ্ক কালার দেখি আমরা কখনো কখনো অনেক বিগ্রহে। राजीव प्रभु, रक्त तो रक्त भरा है ना प्रभु, रक्त भरा है। रक्त भरा, अच्छा। लेकिन रामचंद्र का कारण तो थोड़ा ग्रीनिश रहता है ना, ग्रीनिश बोला गया। तो कहीं देगा पिंक कलर भी देगा, पिंक कलर। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से तो ग्रीनिश शायद बोला गया ना राम। अच्छा, और पीतवर्ण, पीतवर्ण माने येलो कलर, तो महाप्रभु का अवतार समझ लेना चाहिए गर्ग मुनि जो बोला। এখন দাপরে बोलिए। रामचंद्र जी को दूब का वर्ण बोला गया, ग्रीन दूब घास जो होता है उस कलर का बताते हैं। দুর্বাদল শ্যাম, ওকে। এই দাপরে সে কৃষ্ণ বর্ণ প্রাপ্ত হয়েছে। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবতে 10:8-13 থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, 37 নম্বর শ্লোক। শুক্ল, হ্যাঁ বলুন, বলি। प्रभु चिंतन पे प्रभु, ये व्हाइट कलर में कौन आए, किस रूप में आए थे? हंस अवतार, महाप्रभु हंस अवतार। ओह, प्रभु रेड में कृष्णचंद्र नहीं, रेड में तो राजीव प्रभु बता रहे रक्त भरा हो, रक्त भरा हो। आई डोंट नो मच अबाउट दैट अवतार, बट 37 नंबर श्लोक। शुक्ल रक्त पीत वर्ण এই তিন দুটি, शुक्ल रक्त पीत वर्ण এই তিন দুটি সত্য ত্রেতা কলিকালে ধরেন শ্রীপতি। সত্য ত্রেতা কলিকালে ধরেন শ্রীপতি। লক্ষ্মীপতি ভগবান সত্য ত্রেতা ও কলিযুগে যথাক্রমে মানে ক্রোনোলজিক্যালি শ্বেত, রক্ত ও পীত বর্ণ ধারণ করেন। 38 নম্বর শ্লোক। ইদানিং দাপরেতিহ হইলা কৃষ্ণ বর্ণ। ইদানিং দাপরেতিহ হইলা কৃষ্ণ বর্ণ। এই সব শাস্ত্র গম পুরাণের মর্ম। এই সব শাস্ত্র গম পুরাণের মর্ম। এখন দাপর যুগে তিনি কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছেন। এটাই হচ্ছে পুরাণ ও অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্র সমূহের সারমর্ম, ঠিক আছে। दापर में कृष्ण वर्ण धारण कर, तो थोड़ा भगवान थोड़ा काला थे ना, एक गान भी आता ना, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। और क्या क्या भजन है काला, काला के ऊपर, भगवान कृष्ण का वर्ण के ऊपर। काला कन्हैया, काली कमली वाला,
हाँ यशोमती मैया से बोले नंदलाल। ये तो अभी बोल दिया। दूसरा कोई भजन आता है क्या? काली कमले वाली क्या बोला आपने? हाँ बोलिए। सेम भजन में एक लाइन है। ऐसे करके है ना प्रभु। पहले तो कोई बोलता नहीं पूछने से, फिर जब सब एक साथ बोलने लग जाता है। हाँ बोलिए। मैंने काली कमले वाले ने जादू ऐसे किया। अच्छा कोई भजन है क्या? ये क्या श्लोक है? गाना है गाना। इस श्लोक है प्रभु, कोई नहीं, भजन है जो प्रभु, आप गा भजन रहे है, हैं, वही। भजन है प्रभु। तो गा के सुनाइए थोड़ा। याद नहीं आ रहा प्रभु। याद नहीं आ रहा है। वाह। हम गाना गाया प्रभु। काली पर एक भजन और है। काली कमली वाले ने ऐसा जादू डाला, इसीलिए काला। ये तो ये वही प्रभु गाना गा आ रहे गया, हैं, यशोमती वही नंदन। गाना है। वही गाना आ गया। प्रभु जी हाँ गा रहे, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो कर भी जग से निराला क्यों। मैंने काली रात को जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया, मेरी कमली भी काली है इसीलिए काला हूँ, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। प्रभु जी पूरा सुना है? हरि बोल, ठीक है बहुत अच्छा ऐसे है। दूसरा दिन सुन लेंगे। हरि बहुत बोल, बहुत अच्छा लगा, बहुत हरि सुंदर। टू गुड टू गुड। प्रभु एक भजन और है प्रभु। हाँ बोलिए। राधे हमारी गोरी गोरी नयन किशोरी कि कान्हा जी को प्यारो है। फिर उसका उत्तर मिलता है, कान्हा हमारो कारो कारो जुगल किशोर कि राधा जी को प्यारो है। हरि बोल। एक्सीलेंट। माता Very प्रभु हरि बोल। तो ये सब दिखाते कि भगवान थोड़ा सांवला वर्ण हुआ है। भगवान को एक्चुअली भक्त लोग उनका दोस्त लोग चिढ़ा भी था कि नंद महाराज और यशोदा माँ तुमको एडॉप्ट किया है, ऐसे करके कुछ बोलता है ना, तो भगवान को बहुत बुरा लग जाता है। भगवान जाके पूछता है कि मैं तुम्हारा संतान नहीं हूँ यशोदा माँ को। बोले क्यों क्यों, कौन बोला? बोला नहीं, तुम लोग सब घोड़े घोड़े हो, हम सब काला, हम काला कैसे आ गए क्या है? तो ऐसे कुछ हुआ ना, ऐसे लीला भी आता है। कहीं से उठा के लाए, मांग के लाए आपको। क्या निर्गुणा नीलमणि माता जी, ड्रामा हुआ था क्या इसके ऊपर? नहीं, ड्रामा नहीं हुआ था। ये 6 या 7 हिंदी के बुक में ना पद्म, वो छंद पद्म होते हैं ना, उसमें सूरदास जी बाल लीला के पद। अच्छा वेरी नाइस। अशोक प्रभु। प्रभु यहाँ पर 37 नंबर में जो अनुवाद है, लक्कीपति भगवान, तो किसको इंगित किया गया है? नारायण को, श्रीपति लिखा है ना श्लोक में, धौरेन श्रीपति। तो उनसे ये लोग अवतार लिए हैं। अरे कृष्ण, श्लोक में बोला तो अब ये बोलेगा कि वही तत्व है क्या श्लोक में? अब ये हम लोग पढ़ा था ना कुछ दिन आगे कि भगवान का कोई भी नाम लीजिए सब भगवान जैसे ही शक्तिशाली है, तो सब एक ही बात, तो ठीक है उस हिसाब से, उस एंगल से, ठीक है। हाँ, लेकिन हर जगह यही मिलता है प्रभु, हर जगह कभी नहीं। तो फिर हम 2-4 जगह बताए, एते चमसा कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, यहाँ नहीं मिला। 39 नंबर श्लोक। दापुरे भगवान श्याम, बोलिए। द्वापरे भगवान श्याम, पीतो भाषा निजाजुदो, पीतो भाषा निजाजुदो, श्रीवत्सादि भीरस्कोश्च, श्रीवत्सादि भीरस्कोश्च वीरस्कैश्च লক্ষণৈরূপলক্ষিত। লক্ষণৈরূপলক্ষিত। এটি করভাজন মুনি কর্তৃক উক্ত শ্রীমদ্ ভাগবতের একটি শ্লোক। করভাজন মুনি নবযোগেন্দ্র নামক যে 9 জন মহাযোগী মহারাজ নিমিকে বিভিন্ন যুগে ভগবানের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করে শোনাইছিল। করভাজন মুনি মানে নবযোগেন্দ্রের মধ্যে একজন ছিল করভাজন, ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। তো क्या बोल रहे करभाजन मुनि? बोल रहे हैं अनुवादे, দাপর যুগে পরমেশ্বর ভগবান শ্যামবর্ণ ধারণ করে অবতীর্ণ হন। তিনি পীত বসন পরিহিত এবং তার হাতে অস্ত্র শস্ত্র শোভা পায়। তিনি কৌস্তব মুনি ও শ্রীবৎসাদি চিহ্ন সমূহের দ্বারা সজ্জিত। এইভাবেই তার
लक्षणগুলি বর্ণিত হয়েছিল। ठीक है, तो द्वापर युग कृष्ण के बारे में ये करभाजन जो नवयुगेंद्र में से एक योगेंद्र है, उन्होंने बताया था निमि को, महाराज निमि को। बुक में नहीं दिया है, बुक में नहीं दिया, क्या नहीं दिया है, पूरा सेंटेंस बोलिए। तो महाराज निमि के बारे में जो करभाजन मुनि ने बोला वो सब नहीं, तात्पर्य में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ अनुवाद दिया है प्रभु, दिया है प्रभु, हिंदी बुक में दिया है तात्पर्य में। महाराज निमि के बारे में कहाँ दिया है? तात्पर्य में है माता जी, नीचे है। इसे राजा निमि ने 9 राजयोगियों में सर्व प्रमुख संत करभाजन ने विभिन्न युगों में भगवान के विविध स्वरूपों के संबंध में बतलाते हुए कहा। 40 नंबर श्लोक। कलिजुगे जुग धर्म नामेर प्रचार, कलिजुगे जुग धर्म नामेर प्रचार, तथि লাগি পীত বর্ণ চৈতন্য অবতার, तथि লাগি पीत वर्ण चैतन्य अवतार। हाँ बोलুন ইন্দ্রাণী মাতাজি। প্রভুজি নবযোগেন্দ্র হচ্ছে 9 জন মুনি, তার মধ্যে করভাজন মুনি একজন ছিলেন অন্যতম। তাই তো বলেছি, আমি নবযোগেন্দ্র একটাই নাম বলেছি। না 9 জনের মধ্যে একজন করভাজন। হরি অন্তরিক্ষ এই নাম ছিল, আর বাকিদের হরি অন্তরিক্ষ, কবি, পিপলায়ন, বলে দিচ্ছি 9 জনের নাম কি। নবযোগেন্দ্র নেমস। चैट बॉक्स में मैं पेस्ट कर रहा हूं, ये आएगा बाद में। कवि, हरीर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अभिहोत्र, द्रुमिला, चामसा एंड करभाजन। एक करभाजन है ना 9 नंबर, वही बोला महाराज निमि को। ये आएगा 11th कैंटो में भागवतम में, हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ये सब ऋषभ देव का पुत्र है। ऋषभ देव का 100 पुत्र था ना, ऐसे कुछ 100 में से ये 9 आता है। 100 में से 9 जोगी हो गए। हाँ ओके। तो प्रभु जी ये क्या बताया इनको? ये श्लोक बताया अभी जो हम लोग ने पढ़ा, अनुवाद पढ़ा, महाराज निमि को उन्होंने बताया ऐसे। 39 नंबर अनुवाद पढ़ा ना अभी। एक साथ चलने में क्या होगा, प्रश्न कर पाएंगे। आप अगर सोचिए कुछ पीछे छूट गया, वो उसी को लेकर पकड़ा हुआ है, तो फिर क्या होगा, सामने वाला भी छूट जाएगा। इसलिए लेट अस गो टुगेदर। इफ समथिंग you missed, then you mark it, then we'll come back to it. অনুবাদ শ্লোকার্থ। কলিযুগের যুগধর্ম হচ্ছে ভগবানের নামের মহিমা প্রচার। ये कविराज गोस्वामी का श्लोक है। সেই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য ভগবান পীতবর্ণ ধারণ করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। ঠিক আছে, उसीलिए वो पीत था ना श्लोक में। जैसे आप देखिए श्लोक नंबर 37 में दिया हुआ है, शुक्ल रक्त पीत वर्ण, तो पीत वर्ण धारण करके येलो, पीत माने येलो, एक्चुअली गोल्डन, गौर वर्ण महाप्रभु, गौरांग, पीरांग ना गौरांग, तो गोल्डन कम्प्लेक्शन, কিন্তু গোলটা একটু ইয়েলোর মতো লাগে না, ইয়েলোইশ, ওই জন্য পীত বর্ণ। পীত বর্ণ ধারণ করেছেন, দাপর যুগে পীত বস্ত্র ধারণ করে, দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। তাৎপর্য, এই কলিযুগে প্রত্যেকের আচরণীয় ব্যবহারিক ধর্ম হচ্ছে ভগবানের নাম সংকীর্তন। এটি প্রবর্তন করেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। প্রকৃতপক্ষে ভক্তিযোগের শুরু হয় ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার মাধ্যমে। বুঝলে, এই ভক্তি, এই উক্তি মুন্ডক উপনিষদের ভাষ্যে মধ্বাচার্য কর্তৃক প্রতিপন্ন হয়েছে। এই প্রসঙ্গে নারায়ণ সংহিতা থেকে তিনি এই শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন। কোন শ্লোক? দাপরি জৈজ নৈ বিষ্ণু পঞ্চরাত্রৈস্তকে বলই কলোতৌ নাম মাত্রেন পূজ্যতে ভগবান হরি। ঠিক আছে, দাপর যুগের মানুষের নারদ পঞ্চরাত্র ও অন্য সমস্ত প্রামাণিক শাস্ত্রোক্ত
বিধি অনুসারে শ্রী বিষ্ণুর আরাধনা করা উচিত, কিন্তু কলিকালে কলিযুগে মানুষের কেবল ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা উচিত। বিভিন্ন উপনিষদে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন কলি সন্তরণ উপনিষদে বলা হয়েছে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, ইতি ষোড়শ নাম্ন কলি কলমশ নাশনম নাত পরতরোপায় সর্ববেদেষু দৃশ্যতে। অনুবাদ: সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে অনুসন্ধান করিয়ে কলিযুগের কলুষকে নাশ করবার জন্য হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের থেকে অধিক উপযোগী আর কোনো পন্থা পাওয়া যায়নি। हरि बोल। देखिए हम लोग जो हरिनाम कर रहे, प्रभुपाद ने जो हम लोग को दिया है कितना इंपॉर्टेंट है, और कोई उपाय नहीं है बोल रहा, ये मेन मंत्र है, यही इस कलयुग का डिटर्जेंट है। वी आर सो फॉर्चुनेट। कोई बोल सकता है ये मनगढ़ा है, मनगढ़ा नहीं, उपनिषद में दिया हुआ है, कलिशंतरण उपनिषद में दिया हुआ है। ठीक है, अच्युत कर्णेश्वर प्रभु, क्लियर? अगला श्लोक 41। तप्त हेम समकांति प्रकांड शरीर, तप्त हेम समकांति प्रकांड शरीर, नवमेघ जिनी कंठ ध्वनि से जे गंभीर, नवमेघ जिनी कंठ ध्वनि जे गंभीर। ये महाप्रभु का रूप के वर्णन करे चंदा माता जी। कौन? कविराज गोस्वामी। तार प्रकांड शरीर कांति तप्त कांचনের মতো উজ্জ্বল, তার গভীর কণ্ঠস্বর নবমেঘের গভীর গঞ্জনকেও পরিভূত করে। बहुत गंभीर वॉइस, डीप वॉइस। और बॉडी बहुत प्रकांड शरीर। प्रकांड शरीर अगर आपको देखना है महाप्रभु कैसे, अगर आप विश्वास नहीं करते तो एक काम कीजिए, आप ये बरानगर चले जाइए। बरानगर में पाटवारी है, हम लोग कुछ दिन आगे गए थे, वहाँ महाप्रभु का खराव रखा हुआ है एक कांच का बॉक्स में, देखे होंगे आप लोग, याद है? गया था जब? यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तो खराव का साइज देखिएगा। गए थे हम लोग। हाँ, अभी अब बाटा का जूता खरीदेगा तो 15 नंबर होगा कम से कम, इतना बड़ा खराव। इतना बड़ा, जिसका पैर 15 नंबर जूता तो उनका हाइट क्या होगा सोच लीजिए आप, वेरी टॉल और अजान लुम्बित तो भुजो और गंभीर वॉइस। अगला श्लोक 42। দৈর্ঘ্য বিস্তারে যেন আপনার হাত, দৈর্ঘ্য বিস্তারে যেই আপনার হাত, চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাত, চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাত। মহাপুরুষের একটি লক্ষণ হচ্ছে তিনি দৈর্ঘ্য চওড়ায় ও বিস্তারে তার নিজের হাতের 4 হাত পরিমিত দীর্ঘ হবেন। माय गुडनेस, 4 टाइम्स। उनका हाइट क्या होगा सुनिए महापुरुष लोगों का, 4 टाइम्स हाथ का साइज। ठीक है, आप लोग होमवर्क है घर में, आप लोग कौन कौन महापुरुष है घर में सब नाप के बताइएगा कल। तो और ऐसे भी महाप्रभु का हाथ तो घुटना तक जाता था, उसका 4 गुना उनका हाइट था। तो सोचिए कैसे गंभीरा में महाप्रभु रहते थे। गॉड नोस, महाप्रभु नोस। अगला श्लोक 43। নগ্রোধ পরিমণ্ডল হয়, নগ্রোধ পরিমণ্ডল হয় তার নাম, নগ্রোধ পরিমণ্ডল হয় তার নাম, নগ্রোধ পরিমণ্ডল তনু চৈতন্য গুণধাম, নগ্রোধ পরিমণ্ডল তনু চৈতন্য গুণধাম। এই ধরনের মহাপুরুষকে বলা হয় নগ্রোধ পরিমণ্ডল। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যিনি হচ্ছেন সমস্ত গুণের আকার, সেরূপ নগ্রোধ পরিমণ্ডলের মতো দেহ ধারণ করেছেন। नगरत परिमंडल में 4 टाइम्स हैंड, जो व्यक्ति 4 टाइम्स हैंड महापुरुष उनको नगरत परिमंडल बोलता है। तात्पर्य, परमेश्वर भगवान जिनि तार माया शक्तिर द्वारा बद्धजीव समूहके मोहित करे रेखेছেন, তিনি ছাড়া আর কেউই এই সমস্ত দৈহিক আকৃতি ধারণ করতে পারে না। এই সমস্ত লক্ষণগুলি কেবল বিষ্ণু অবতারের মধ্যেই দেখা যায়, অন্য কারোর মধ্যে তা দেখা যায় না। ক্লিয়ার? নগ্রত পরিমণ্ডল।
प्रभु एक बार फिर से बोलिए ना। प्रभु थोड़ा यहाँ पे ब्रेथ के बारे में भी बताया, वो समझ नहीं आया कितना होगा। তিনি দৈর্ঘ্য বিস্তারে তার নিজের হাতের 4 হাত পরিমিত দীর্ঘ। তো দৈর্ঘ্য লেখা আছে কিন্তু हाइटेर ব্যাপারেই বলা হচ্ছে, ठीक है। দৈর্ঘ্য माने तो अकॉर्डिंग टू मी विथ, बट यहाँ हाइट के बारे में बोला हुआ है कि जो व्यक्ति 4 टाइम्स अपना हैंड का हाइट होगा, हैंड का साइज, उसको नवग्रह परिमंडल। এটা সন্ধি বিচ্ছেদ করতে পারে না তো ইন্দ্রাণী মাতাজি করে বলবেন, ঠিক আছে, কালকে বলতে পারেন। अगला श्लोक 44। तो ये महापुरुषों का लक्षण है, नवग्रह परिमंडल, यानी 4 टाइम्स व्यक्ति 4 टाइम्स अपना हाथ होगा। तो बहुत हम लोग ये सिंह ग्रीवो कल भी आया था ना, गला सिंह जैसा, और महापुरुष का क्या लक्षण क्या है? नो कंधा, शोल्डर इज लाइक लाइन, शोल्डर लाइन, और गंभीर नाभि, आजानुलंबित भुजो, दीज आर ऑल महापुरुषों का लक्षण। ये वाला श्लोक में दिया हुआ है। अच्छा, वेरी वेरी अनकॉमन। अगला श्लोक 44। आजानुलंबित भुजो कमललोचन, आजानुलंबित भुज कमललोचन, तिल फूल जिनी नाशा सुधांशु बदन, तिल फूल जिनी नाशा सुधांशु बदन। महाप्रभु के बारे में बोल रहे हैं, तार बाहु जुगल आजानुलंबित, घुटनों तक, ठीक है। हम लोग का कितना तक है? खांसी कम हुआ ना खांसी। दो 4 मिनट एडिट कर रखना, जब ज्यादा खांसी होगा ना रात को भी मुंह में ऐसे चाप के यार। तार बाहु जुगल आजानुलंबित, तार चक्षुदय ठीक पद्म फुलेर मतो, आहा कमललोचन, तार नासिका तिल फुलेर मतो। तिल फूल देखा कोई? कैसा होता है? नहीं बाबा, ब्लूइश होता है, माने लंबा नाक एकदम। तार नासिका तिल फुलेर मतो एवं तार मुखमंडल चंद्रेर मतो सौंदर्य मंडित, मून लाइक, वेरी ब्यूटीफुल फेस। 45। शांत दास कृष्ण भक्ति निष्ठा परायण, शांत दास दांत कृष्ण भक्ति निष्ठा परायण, भक्त वत्सल सुशील सर्वभूते सम, भक्त वत्सल सुशील सर्वभूते सम। তিনি শান্ত সংযত, দান্ত মানে সংযত, মানে একদম সিরিয়াস গম্ভীর, এবং কৃষ্ণ ভক্তির প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিষ্ঠাপরায়ণ। তিনি তার ভক্তদের প্রতি স্নেহপ্রবণ, তিনি সুশীল এবং তিনি समस्त जीवेर प्रति समभावापन्न। महाप्रभु के बारे में बोले कविराज गोस्वामी। अगला श्लोक 46। थोड़ा काउट पिन दे दीजिए प्लीज, तब तक काउट पिन। चंदनेर अंगद बाला चंदन भूषण, चंदनेर अंगद बाला चंदनेर भूषण, नृत्यकाले परि करेन कृष्ण संकीर्तन, नृत्यकाले परि करेन कृष्ण संकीर्तन। তিনি চন্দন কাঠের কঙ্কন ও অনন্তর দ্বারা ভূষিত। ओके, तो चंदन काठेर कंकन, कंकन क्या होगा? हाथ का कंगन, रिस्ट। चंदन काठेर कंकन ও অন্তরের দ্বারা ভূষিত এবং তার অঙ্গ चंदन चर्चित। तो काठेर बाला पहना हुआ है क्या? हमको जो समझ में आ रहा है, लकड़ी का, चंदन लकड़ी हाथ का बाला, हाथ का बाला का बारे में एक बार बोले समझ में आ जाता है। तो कोई चंदन का बाला पहना हुआ है हाथ में, चंदन है। और हिंदी में लिखा हुआ है, वे चंदन के बने कंगनों और बाजूबंद से विभूषित थे। बाजूबंद भी और कंगन भी दोनों অনন্তের দ্বারা ভূষিত, অনন্তের মানে बाजूबंद, अच्छा। এবং তার অঙ্গ চন্দন চর্চিত, और शरीर में भी चंदन लिप्त है, बहुत सुगंधी। श्री कृष्ण संकीर्तने नृत्य करार समय তিনি এভাবেই সজ্জিত হন, और डांसिंग के समय ऐसे कर लेते हैं महाप्रभु। चंदन वंदन लगा तो फिर क्या होता, ठंडा रहेगा बॉडी, डांस में थक नहीं जाएंगे महाप्रभु, ये तो मुझे समझ में आता है। और बहुत अच्छा सेंट आएगा बॉडी से,
अगला श्लोक 47। এই সব গুণ লইয়া মুনি বৈশাপায়ন এই সব গুণ লইয়া মুনি বৈষম্পায়ন বৈশম্পায়ন সহস্র নামে কইল তার নাম গণন। সহস্র নামে কইল তার নাম গণন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এই সমস্ত গুণাবলী লিপিবদ্ধ করে বৈশম্পায়ন মুনি বিষ্ণু সহস্র নাম স্তোত্রে তার নাম উল্লেখ করেছেন। तो विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी महाप्रभु के बारे में उल्लेख है। यही समझ में आ रहा है कि महाप्रभु का ये सब गुणावली, चंदन अंग बाला चंदन भूषण नित्यकालीपुरी करे कृष्ण संकीर्तन, ये सब लिखा हुआ है महाप्रभु का बारे में। वैशंपायन मुनि जो विष्णु सहस्त्र नाम उसमें। अगला श्लोक 48। दुई लीला है क्लास भी है। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী। বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। হরি বল হরি বল।